Yo guys, what's up? Welcome back to the YouTube channel again. So I guess that आप लोगों ने generate client security hash project अच्छे से कर लिया है and you have submitted it to the UiPath Academy as well. In this video, we're going to be starting a new project that is generate yearly reports. ठीक है, तो client security hash वाला project हमारा proper complete हो गया है and now we'll be starting with the next project which is there inside the UiPath Academy, that is the generate yearly reports, right? So guys, this is UiPath with Jay. Let's get started. Okay, so as you can see that we are inside the academy. हम academy के अंदर हैं यहाँ पे and यहाँ पे हम start करने वाले हैं next project that is the generate yearly reports. ठीक है जी, भाई उसके अंदर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ. We'll be reading the PDD as well. You can see generate yearly report PDD, right? So let's quickly go to the PDD guys. देखिए, प्रोजेक्ट आपका पूरा एक्मे के ऊपर ही है. एक्मे सिस्टम 1 वेब एप्लीकेशन है, उसके ऊपर ही है. हम एक बार इसका हाई लेवल देख लेते हैं यहाँ पे व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट वी हैव टू लॉग इन इनटू द एक्मे सिस्टम 1 वेब एप्लीकेशन. ओके, मैंने यहाँ पे लॉग इन करके रखा हुआ है. ठीक है, देन saying access the word listing item on the dashboard. Okay, we'll be accessing the word work items over here, right? Okay, then it is asking to select an activity of type WI4. देखिए, क्लाइंट सिक्योरिटी हैश पे हमने WI5 सेलेक्ट किया था, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे WI4, that means work items 4, right? So I'll go inside the Chrome and I'll select. इस पेज में नहीं है, so I'll check out the second page and yeah, we have WI4. Okay, generate yearly report for the vendor. You can see that this is the project name as well. Go to the Horlas. Okay, now let's see. Open the detail page for the selected activity and retrieve the vendor tax ID. मतलब हमें vendor tax ID यहाँ से procure करना है. No issues, we'll be doing it. Sorry, we'll be procuring the vendor tax ID, that is this part. ये हमें यहाँ से extract करना है. इसको मैं अभी के लिए copy कर लेता हूँ. ठीक है, okay. Now what we have to do, ये ले लिया. Okay, access download monthly report under reports in the home page. Okay, now we have to go back to the home page. I'll just quickly duplicate it. Okay, and I'll go to home page. यहाँ पे need to go to the reports part, download monthly report. Okay, and now I think I have to paste the vendor tax ID over here. Let's see. Enter retrieve vendor tax ID and download the monthly reports for all the months in the current year. जो करंट ईयर चल रहा है उसमें सब मंथ की आपको क्या है, मंथली रिपोर्ट्स डाउनलोड करके रखनी है. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, आई विल पेस्ट दिस वेंडर टैक्स आईडी लाइक दिस. मंथ विल बी जनवरी एंड ईयर. ना आई विल टेल यू, if I'll be selecting 2025, so it is not like यहाँ पे क्या, it is not showing me. Okay, it is not showing me for the 2025. I have done it, मतलब मैंने एक एक मंथ के लिए चेक किया है, बट इट इज़ नॉट शोइंग मी फॉर द ईयर 2025, बट इट इज़ शोइंग मी फॉर द ईयर 2024. वेल, प्रेस डाउनलोड रिपोर्ट. यू कैन सी दैट इट इज हैज डाउनलोडेड अ रिपोर्ट. ठीक है, ये मेरे पास रिपोर्ट है, दिस इज द रिपोर्ट. एंड ऐसे ही करते करते मुझे सब रिपोर्ट डाउनलोड करनी है हर मंथ की इस वेंडर टैक्स आईडी के लिए सेम, राइट? सो दिस विल बी अ टाइप ऑफ अ इनबिल्ट लूप. वो हम देख लेंगे उस समय में क्या यूज़ करना है वहाँ पे जाके. ठीक है, ओके. अच्छा, उसके बाद export the monthly reports to an Excel file with the naming convention yearly-reports-year tax ID. मतलब इन सबको क्या करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी पार्ट आता है, बताता हूँ क्या. What you need to do, you need to merge all those reports in a single Excel and keeping the schema same. Schema मतलब ये invoice number, item, amount, tax, total, currency and date.
right? You got my point. Suppose we have downloaded all those reports, all those monthly reports of this specific tax ID, right? So we have to merge it inside an Excel, all those things over here in a single sheet, you can say, right? And now what we have to do, we have to rename it as well. Yeah, we need to rename it yearly report hyphen, was the name 2024. Okay, so it will be 2024. Oh, sorry, 2024 and uh, hyphen and the tax ID, that will be the FR one. FR something something is there, this one, right? And we have to save the file. Simple. Okay. And now we have to access the upload monthly report. Okay. I'll go over the home page again, guys. I'll have to access the upload yearly report. Right, and put the tax ID over there. Here is 2024. Then I need to select the report file like this. For example, just take an example. This is the file, right? And I'll press on upload. Okay. You can see that report was uploaded. Confirmation ID is XYZ. जो भी ID हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी. देखते हैं क्या करना है. With a unique upload ID. ठीक है. Access work item details and open update work items. Okay. So अब मुझे यहाँ पे क्या करना है guys? I need to copy this part. ये इसको मुझे कॉपी करना है like this. Control C and I need to update that specific work item over here. जैसे मैंने लास्ट में किया था, लास्ट प्रोजेक्ट में. This part will be the same part. ठीक है. Update work items. I'll click on this. Inside the comments, I think we have to use the upload ID. Yeah, we have to use the upload ID inside the comments. यहाँ पे मैं ऐसे डाल दूंगा and new status will be completed and update work item. Simple, right? So I think guys, this is very clear how we need to do this project, right? It is simple but at the same time it is logical. So guys, अपना dispatcher part पूरा same रहेगा, just वहाँ पे हमें WI4 के बदले यूज करना है WI5. बट डोंट वरी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग फ्रॉम द स्क्रैच. कोई दिक्कत नहीं, मैं हर चीज स्क्रैच से बताऊंगा. ठीक है. ओके. एंड यस, वी विल बी डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ RE फ्रेमवर्क. Okay, let's quickly go to the studio guys and use a RE framework for this. And I'll be using REF. I'll say generate yearly reports like this, and this will be the dispatcher. I'll copy this quickly and just paste it, create. Okay. Okay, so guys, as you can see that we are inside the studio and यहाँ पे मेरा template RE framework का बन के है ready. ठीक है. So now first thing first, I'll have to what? I'll have to create a library. But wait, आपको याद होगा हमने पिछले प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी पहले से बना के रखी है, that is the Acme login library. Right, I'll just have to invoke it over here and our work is done. Our login part is done. See how cool is this, how easy is this, how time saving is this. Okay, so I'll just go to the manage packages and over there inside the all packages I'll select libraries only, and I can check that I have this 2025 Acme UI library over there installed already. Okay, and I can just search it as well if I could be finding it. Acme, let's see when it was last modified. No, this film is the lot latest one. Yes, install it, save it. Okay, so now we have the UI library or the library installed over here. ठीक है. सेकेंड पार्ट क्या होगा भाई, मैं अपने फ्रेमवर्क में जाऊंगा पहले. आई विल चेक इनिट ऑल एप्लीकेशंस. यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशंस को इनिशियलाइज करता हूँ. मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट में बताया था.
कौन सी एप्लीकेशन है मेरे पास, इसमें लकीली वी हैव ओनली वन एप्लीकेशन, ठीक है। एंड आई विल गो ओवर देयर, आई विल से Acme. You can see that we have login system 1 over here. Okay, I'll just drag and drop this. अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मेरे से मांग रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड। गाइस, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने क्या है, पासवर्ड, यूजर नेम, एवरीथिंग वी हैड स्टोर्ड इनसाइड ऑफ एन एसेट। एसेट पे हमने अपना पासवर्ड एंड यूजर नेम स्टोर किया था। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। जस्ट फॉर द इनिशियलाइजेशन पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे विल गो क्विकली इनसाइड द डेटा config डॉट xlsx, ओके। एंड यहाँ पे जाके सेटिंग्स में व्हाट आई डू, आई जस्ट गिव द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक एसेट, जो मेरे पास एसेट है, ठीक है। व्हाट आई डू, आई गिव दैट नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक एसेट। आपको पता होगा एसेट मॉडर्न फोल्डर बाउंड होता है, ठीक है। तो यू कैन सी दैट Acme UI Democrats Acme, एसेट नेम इज ओनली Acme। हमें पता है हम उसे सेटिंग्स शीट में डालेंगे यहाँ पे साइड द वैल्यू पार्ट, ठीक है। ऐसे Acme ट्रेंड्स, ठीक है। ऐसे credentials फॉर लॉग इन इनटू Acme सिस्टम 1, क्योंकि और भी सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम 3 भी है, वो आगे प्रोजेक्ट्स में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तो Acme अंडरस्कोर क्रेडिट्स मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसका क्रेडेंशियल है। तो मैं इसको कॉल करूंगा, ये की है कि मुझे मिलेगी वैल्यू, ठीक है। जस्ट अ डिक्शनरी, ओके, ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट। ये मेरा स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, आपको मैंने पहले से बता रखा है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसमें इतना ही कर रहा हूँ। एंड ओवर हेयर व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मेरे पास आपको पता है गाइस, इन अंडरस्कोर कॉन्फिग एक आपका क्या है, आर्गुमेंट होता है यहाँ पे। तो इसके अंदर से आई विल बी टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम हेयर। या तो मैं यहाँ पे असाइन एक्टिविटी डाल के अलग से कर सकता हूँ, या मैं इसके अंदर ही कर सकता हूँ, ठीक है। आई विल बी कीपिंग इट ओवर हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल से गेट क्रेडेंशियल्स। अच्छा, ये क्यों जरूरी है एक्टिविटी, मैं आपको बताता हूँ गाइस। क्योंकि वी विल बी रिक्वायरिंग द क्रेडेंशियल्स, जो मेरे एसेट है उसके अंदर से मैं क्रेडेंशियल लूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आई विल गो टू द प्रोजेक्ट अगेन, कॉन्फ़िग, ऑर्केस्ट्रेटर क्यू फोल्डर, व्हाट इज द फोल्डर नेम, डेवलपमेंट, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरा Acme Creds। इसको मैं फटक से कर रहा हूँ कॉपी, गो इन द स्टूडियो, क्रेडेंशियल एसेट नेम इनसाइड द एक्सप्रेशन एडिटर, एज इन कॉन्फ़िग। ऐसे ही मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, की एज ए स्ट्रिंग मांग रहा है, स्ट्रिंग की है मेरी ये, बट दिस इज एज एन ऑब्जेक्ट, आवर रिक्वायरमेंट इज एज ए स्ट्रिंग। मैं इसका करूंगा आपका डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये मेरे एसेट का नेम हो गया है। अब कौन सा मेरा पाथ है यहाँ पे, कोई कौन सा फोल्डर है, डेवलपमेंट फोल्डर है, दैट्स इट, सिंपल। मैं इसको यहाँ से ऐसे करके आई कैन राइट इट एज लाइक दिस इन कॉन्फिग, एंड ऐसे करके आई जस्ट से डॉट टू स्ट्रिंग, व्हाई, बिकॉज दिस वाज एन ऑब्जेक्ट, आई कन्वर्टेड इट टू डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, save it. Okay, so we will be getting our username and password over here inside the properties. I'll just say str, have to create it. I'll say str underscore user name, and that's sec because it's a secure string, str, and we are following the best practices over here as well. हम क्या है यहाँ पे आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये मेरा पार्ट डन है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक आपका लगा देता हूँ debug, एक सेकेंड, debug ओवर हेयर, ओके, डन। एंड इसको मैं कर रहा हूँ सेव, ठीक है जी। एंड ये है मेरा dashboard, it is there, I think it should be handled, let's see, debug it.
could not find the expression. 1 second, I'll just say what is the issue now. Cannot analyzer have errors. Okay, unknown test case reason cannot create unknown type. Verify expression, but we have not selected any expression out of it. Let's see. Tests. Why it is saying like this? Let's see. Any error inside the this part? Let's see here as well. अभी मैं इसको अभी के लिए ऐसे कर रहा हूँ. Now let's see it is running or not. Okay, so we have some errors. See, the reason I did this now workflow analyzer just to see that इसके एरर तो नहीं है मेरे पास कोई. ठीक है, तो इट वाज सेइंग समथिंग टेस्ट एरर, बट हम उस फाइल पे अभी तक नहीं गए हैं रिगार्डिंग दैट. तो वी हैव टू सी कहाँ पे एरर आ रही है. ओके, लेट्स debug it. Whenever we are debugging it, it is saying that could not load ref channel tests. Reason cannot create unknown type. Assembly testing activity verify expression. Okay, let's see. Testing activities का पैकेज नहीं है हमारे पे. No issues. Let's say testing. Maybe this is the case only. Think this is the case only. Testing activities. Because see, हमने क्या है वो फाइल को छेड़ा नहीं है. We are not filled with that specific file. हम लोग टेस्ट अभी यहाँ पे नहीं देख रहे हैं. We are focusing on the project only. So you can see that we don't have a testing activities over here. So maybe that is the case that it is not working. अभी वो हो जाएगा, then it should be working. Okay guys, so we are here inside and let's see the packages have been installed. Testing activities. Okay, and now I'll just say debug the whole project. Now it should not come. It is not coming right now. ठीक है, चलो let's see. So it was what it was previously opened. It clicked on logout and it is logging it again just for a cleaner login. ठीक है, यहाँ पे वो debug वाला मेरा activity पे रुक गया है. Right. Okay. So now guys देखिए, मैंने आपको बताया था that ये हमें इससे क्या है, वही सेम पार्ट जो मेरे डिस्पैचर पे है प्रीवियस प्रोजेक्ट में वही यहाँ पे लगेगा सेम टू सेम. हम उसको दोबारा से बनाएंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आए कैसे कैसे करना है. ठीक है, तो गाइस देखिए, मैंने आपको बताया था कि दिस प्रोजेक्ट विल बी कन्वर्टेड टू एक्सेल. एक्सेल में ये प्रोजेक्ट कन्वर्ट होगा. ओके, right now it is using queues as a transaction data type. The data type over here needs to be data row because we will be iterating each and every row from the excel. ठीक है, हम डेटा टेबल यहाँ नहीं लेंगे. we will be using data row over there. Please repeating it again, we'll be using data row लेंगे. Please don't be confused. data table क्यों नहीं लेंगे, मैंने अच्छे से बताया है in the previous video that हम queue नहीं लेंगे डेटा टेबल, क्यू डेटा रो हम लेंगे. आई मीन इन द प्रीवियस प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल. बता देता हूँ दोबारा. डेटा रो इसलिए गाइस बिकॉज वी विल बी इटरेटिंग अ सिंगल रो एट अ सिंगल टाइम. एक टाइम पे हम एक रो को इटरेट करेंगे, मतलब एक रो पूरी प्रोजेक्ट में घूमेगी एक इटरेशन में. जब मेरा ट्रांजेक्शन नंबर इक्वल टू 1 होगा उस समय आपका डेटा रो होगी वहाँ पे 0 इंडेक्स पे. ठीक है, ऐसे ही आगे आगे बढ़ेगा. फिर इंडेक्स वहाँ पे चलते हैं 0 से. डोंट बी कंफ्यूज, वेरी इजी. ठीक है, टू डू दैट क्विकली आई विल बी सेइंग यहाँ पे इसको हम चेंज कर देंगे आपका डेटा रो. ओके, जैसे अब यहाँ पे चेंज करोगे यहाँ पे आपके पास एक दो एक्सक्लेमेशन मार्क आएंगे. टू रिमूव दैट आई विल क्विकली गो ओवर देयर एंड जस्ट सेव इट एंड से नथिंग अगेन. ठीक है, यहाँ पे ओपन हम करेंगे वर्कफ्लो को. आर्गुमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शन आपका डालेंगे यहाँ पे हम टाइप को डेटा रो. इसलिए फास्ट कर रहा हूँ इसकी, ये सब मैंने आपको क्या है पिछले वीडियो में बता रखा है. ठीक है, I'll just say if I'll say in transaction number equals 1. अगर मेरा ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे क्या है 1 होगा and if my
एक दूसरा इफ में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, इफ इन ट्रांजैक्शन नंबर, if in tran number is less than equal to io dt transaction data dot rows dot count. Now you can see that both these type of variables, ये भी RHS और ये है आपका LHS, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये आपका कंपेयर कर रहा है, ठीक है, ये दोनों आपके इंटीजर टाइप हो गए। अब तो ये क्या बताएगा, मैंने आपको अच्छे से बताया था भाई, ये क्या होगा यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 1 है, आपकी रोज कितनी रोज है आपके डेटा टेबल में, 10 है, 1 इज लेस देन 10, यस इट विल बी गोइंग इनसाइड ऑफ इट, एंड यहाँ पे I'll just say an assign activity, ठीक है, I'll just say out underscore transaction item IO DT transaction data, this is the data table now, and we have to give the index to get the specific row guys, ठीक है, I'll say in transaction number -1, why, because index starts from 0 over here, ठीक है, एंड इसको मैं ऐसे करके एनोटेट भी कर सकता हूँ फटाफट, आई कैन टेक एनोटेट इट फ्रॉम using the intelligence activities now that we have, ठीक है, वी डोंट हैव टू राइट ऑल दोज एनोटेशंस ओवर देयर, हम उसको डायरेक्टली एनोटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, ऐसे ही मैं इसको यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, एल्स में जाके इसको पेस्ट करूँगा, एंड आई जस्ट से नथिंग, बिकॉज व्हेनेवर रोज विल बी एग्जॉस्टेड, तो क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए ना, इट शुड बी गोइंग डायरेक्टली टू द एंड प्रोसेस स्टेट व्हेनेवर अवर रोज विल बी एग्जॉस्टेड ओवर देयर, ठीक है, ये हो गया डन, ये भी डन है, एंड तो अवर गेट ट्रांजेक्शन डेटा इज लाइक डन, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमें नथिंग करना पड़ेगा, एक बार सेव करके, नाउ आई राइट नथिंग लाइक दिस, ठीक है जी, डन, ओके, तो आपका प्रोसेस गेट ट्रांजेक्शन डेटा डन है, प्रोसेस में व्हाट आई टोल्ड यू दैट व्हाट चेंजेस इट विल बी, दैट पहले तो हम यहाँ पे इसका जो आर्गुमेंट्स है इसको हम चेंज करेंगे टू डेटा रो, ओके, एंड सेव इट अगेन, गो बैक टू द मेन ऑफ द प्रोसेस स्टेट, यहाँ पे जाके इनसाइड दिस आई जस्ट सेट इट टू नथिंग, व्हाई नथिंग गाइस, क्योंकि देखो मैंने बताया था अंदर इस XAML के अंदर हमारे पास एक लॉजिक है जो ये चेक करता है पहले कि ट्रांजेक्शन आइटम आपका कुछ है, और अगर कुछ है तो वो क्यू आइटम है कि नहीं, ठीक है, अगर वो होगा तभी उसके अंदर जाके सेट करेगा अपने स्टेटस को इनसाइड द क्यू स्टेटस को इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर, नहीं तो वो उसके अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे जो नथिंग हो जाएगा बिकॉज वी विल बी यूजिंग द शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर एज वेल, तो इट वोंट बी यू कैन से गोइंग इनसाइड दैट फ्लो, राइट, एंड ऐसे हम करेंगे आपके एसई और सिस्टम एक्सेप्शन के लिए एज वेल, लाइक दिस नथिंग, ठीक है, क्यों है मैं आपको बता देता हूँ गाइस, क्यों मैंने ऐसा किया, देखो यहाँ पे इनसाइड द सक्सेस वाले के लिए देख लेते हैं, ये है ना, ये आ गई ना आपकी कंडीशन, ट्रांजेक्शन आइटम इज नॉट नथिंग मीन्स ट्रांजेक्शन आइटम नॉट नथिंग, मतलब माइनस माइनस प्लस इज समथिंग अगर है, एंड ऑल्सो इट इज शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, एंड ऑल्सो द ट्रांजेक्शन आइटम शुड बी कोर डॉट क्यू आइटम, मतलब आपका यहाँ पे ही ये फेल हो गया है, तो ये आगे इसको चेक नहीं करेगा, इट वोंट बी गोइंग आउट इन द सेकेंड you can say checking condition of that specific short circuit operator, ठीक है, आगे ये नहीं जाएगा, सी दिस इज RHS, my see my cursor, this is RHS and this is LHS, right, it has failed at the LHS left hand side, मैथ्स हमने पढ़ा ना LHS RHS इक्वल टू के उधर, तो ये इसको अब इक्वल टू मान लो अभी के लिए, राइट, ठीक, एंड ऑल्सो इट्स ए कंपेरिजन ऑपरेटर ओवर हियर, कंपेयर कर रहा है, ठीक है, तो LHS फेल है तो ये चेक ही नहीं करेगा उसको, ठीक है, चलो तो आपका इतना पार्ट डन है पूरा, राइट, एंड लेट्स सी, यस वी डोंट हैव एनी एरर्स नाउ इन द प्रोसेस ट्रांजेक्शन से, कुछ भी नहीं है हमारे पास,
ठीक है guys, so okay, so this part we just covered the basics. I told you all that PDD कैसे हमने वहाँ पे देखा है, क्या क्या करना है, a high level of the process as well, right? We also used the library which was being used in the previous processes as well. हमने प्रोसेस की लाइब्रेरी बनाई थी, उसी को हमने यहाँ पे इन्वोक किया है. इट इज वर्किंग रियली फाइन. ठीक है चलिए, तो गाइज विद दिस लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो. इन द नेक्स्ट पार्ट I will be showing how to extract the data from that specific table, how to select WI items 4, and which will be pertaining to generate yearly reports for the vendor. ठीक है चलिए, with this let's close the video. Happy automation, keep learning and keep supporting.